बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा चैप्टर चल रहा है ए सिल्वर लाइफ, जिसमें हम वायरस का यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने डिफरेंट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट वायरस को डिस्कस किया। आज जिस वायरस को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड वायरस। अब इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस, हमारे पास सबसे पहले इस वायरस की डिस्कवरी, इन्फ्लुएंजा वायरस डिस्कवर्ड इन 1933 बाय स्मिथ। फर्स्ट टाइम इन्फ्लुएंजा वायरस और फ्लू वायरस discovered by Smith in 1933. Although there are major three strands or major three types of influenza virus type A, type B, type C. Type A commonly cause flu in birds and mammals, while type B specifically in mammals, while C in different type of other animals, especially pigs, which cause swine flu. Let's start the structure of influenza virus. First of all, classification of influenza virus. Influenza virus belongs to the class of virus Orthomexoviridae or Viridae. Orthomexoviridae. The class of influenza virus is Orthomexoviridae. The size of influenza virus 80 to 120 nanometer. Larger size 80 to 120 nanometer. Now envelope. The envelope present on influenza virus, and because of life cycle through budding, as in earlier lecture we study about that there are two types of life cycle, either through budding or lytic. When the life cycle complete through budding, then the virus form bud with the cell membrane of host cell, and then during budding the host cell membrane will be enveloped around the particle of virus which known as viron. So the viron enveloped by cell membrane of host cell and form envelope around the viron. Next, spikes. There are two types of spike in influenza virus. Number one, neuraminidase, and number two, hemagglutinin. Neuraminidase, those spikes which are responsible for the lysis of host cell membrane. In neuraminidase, there is an enzyme which is known as celidase. Celidase enzyme is responsible for the lysis of host cell membrane. Host cell membrane lysis through neuraminidase, while the hemagglutinin is responsible for binding and fusion of its envelope with the host cell membrane. As earlier we discussed in the life cycle of HIV, the number of neuraminidase molecule per viron almost 100, less number as compared to hemagglutinin, while the number of hemagglutinin per viron up to 500. हमारे पास न्यूरामिनिडेज का जो पर एक वायरस के ऊपर जो वायरन के ऊपर नंबर होगा वो आपके पास होगा अप टू 100. ये आपके पास है न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज जिसका काम है आपके पास लाइसिस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पे आपके पास हेमैग्लूटानिन का नंबर ज्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट राउंड अबाउट कितनी है आपके पास 500. इसका काम है बाइंडिंग एंड फ्यूजन विद होस्ट सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट नंबर पे
इनकी शेप आप देख सकते हैं, न्यूरामिनिडेस की शेप लाइक एज मशरूम या सिंपली टेडपोल शेप। ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, तो इसकी कंपोजिशन टेडपोल, इसकी शेप टेडपोल या मशरूम लाइक है। While the shape of hemagglutinin is rod shape, rod and conical shape। इसकी जो शेप है वो आपके पास रॉड एंड कॉनिकल शेप है। कंपोजिशन ऑफ स्पाइक कंपोज्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन। स्पाइक्स ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होंगी। बीनीथ द स्पाइक देयर इज अ प्रोटीनिशियस लेयर ऑफ कैप्सिड और मैट्रिक्स। इसका जो मैट्रिक्स है उसमें दो तरह की प्रोटीन होंगी। मैट्रिक्स कंपोज्ड बाय प्रोटीन एंड दीज प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 M2 प्रोटीन, नंबर 2 M1 प्रोटीन। M2 protein, those protein which form complete envelope around the genome, around the core is known as M2 protein। ये जो M2 प्रोटीन है आप इनको देख सकते हैं, ये कंप्लीट जो इन्वेलप बना रही हैं, तो ये कंप्लीट इन्वेलप बिकॉज ऑफ M2 प्रोटीन्स है, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया मोर, जबकि इसके कंपैरेटिवली M1 प्रोटीन्स, दीज आर M1 प्रोटीन्स। ये जो M1 प्रोटीन्स है, दीज M1 प्रोटीन फॉर्म चैनल, these M1 protein form channel for हाइड्रोजन पंप। ये आपके पास जो हैं वो आयंस चैनल या हाइड्रोजन पंप चैनल होते हैं जो कि M1 प्रोटीन से सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जीनोम। जीनोम की जब बात करेंगे यानी कोर की बात करेंगे तो कोर इज न्यूक्लियो प्रोटीन। मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑफ ए सेलुलर लाइफ में डिस्कस किया था कि वायरस स्ट्रक्चर मेजरली कंपोज्ड बाय टू मेजर यूनिट्स, नंबर 1 कोट एंड नंबर 2 कोर। अब हमारे पास कोट जो है वो बाहर प्रोटीन है, जबकि इंटरनली इसमें कोर है। अब कोर जो है वो सम टाइम मैंने कहा था कोर में हमेशा डीएनए और आरएनए तो होगा, डीएनए और आरएनए तो होगा, लेकिन सम टाइम में आल्सो प्रेजेंट प्रोटीन्स। तो आज उस चीज की डिस्कशन का जिक्र है कि इसका जो कोर है वो उसमें अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी, यानी कि इसके न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी। इसका न्यूक्लिक एसिड यानी जीनोम होगा आरएनए, जबकि आरएनए के साथ कोर प्रोटीन्स होंगी एसोसिएटेड विद जीनोम यानी आरएनए। अब आप देख सकते हैं यहां पे ये जो है वो आपके पास है आरएनए, ये है आरएनए, लेकिन इस आरएनए के साथ ये जो है वो है कोर प्रोटीन। अब कोर प्रोटीन का नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में शायद मेंशन्ड हो कि कोर प्रोटीन एसोसिएटेड विद आरएनए एंड नंबर अप टू 5। ये जो आरएनए के साथ कोर प्रोटीन अटैच्ड है, इनका जो नंबर है वो आपके पास कितना है 5। उसके बाद आरएनए लेंथ ऑफ जीनोम, जीनोम इज आरएनए and the length of RNA is almost 13,588 न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास इसमें 13,588 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगी। नंबर ऑफ आरएनए फ्रेगमेंट्स, नंबर ऑफ आरएनए फ्रेगमेंट्स 8। नंबर ऑफ आरएनए फ्रेगमेंट इसमें होंगे 8। ये 8 फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए, बट दीज फ्रेगमेंट्स आर सेपरेट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीज 8 फ्रेगमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल एज लाइक द 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ HIV। HIV में हमने कहा
two fragments which are identical with each other. But in influenza virus, although 8 fragments are present, but these all are different from each other. And the number of genes on influenza virus genome is almost 11. इसमें जो 8 फ्रेगमेंट्स हैं उनके ऊपर 11 जीन्स हैं. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ये 8 फ्रेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये 8 फ्रेगमेंट्स हैं. इन 8 फ्रेगमेंट्स के ऊपर मैक्सिमम 8 जीन्स आ सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें बाज फ्रेगमेंट्स के ऊपर मोर देन 1 जीन भी होगा. व्हेन मोर देन 1 जीन on single fragment, so it will be synthesized to single protein. Its product will be the single protein because of single gene. जबकि इसमें 2 genes, तो 2 proteins will be synthesized from this fragment of RNA. इसलिए आप लोग जब वायरस के जीनोम को पढ़ेंगे तो वायरस के जीनोम में लिखा होगा द फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए समटाइम्स सिंथेसाइज्ड मोर 2 or more than 2 proteins because of number of genes when 2 or more than 2. अब उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वायरस का जो टारगेट साइट हमारी बॉडी में है वो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक. चूंकि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक पे जब ये इन्फेक्शन काज करता है उसकी वजह से काज होता है फ्लू. इसकी जो ट्रांसमिशन है वो बाय एयर होती है, थ्रू एयर होती है. इसमें हमारे पास जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपके पास ऑलमोस्ट अप टू 7 days है. यहां तक था स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. होपफुली आप लोगों ने लर्न किया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.